I shared the class. Last topic was the first topic want to discussion. Efficiency कैसे the efficiency of trickling filter. So we'll talk about efficiency of trickling filter. So first of the trickling filter under consideration is standard rate trickling filter. पहला जो trickling filter है हमारे पास वो है standard rate trickling filter. We know in standard rate trickling filter there is no recirculation. Standard rate trickling filter में कोई recirculation नहीं होती. So no recirculation is done. इसलिए इसकी hydraulic loading rate comparatively कम होती है किससे? इसलिए इसकी hydraulic loading rate comparatively कम होती है किससे? High rate trickling filter से. Hence its hydraulic loading rate is comparatively less than that of high rate trickling filter. Now the efficiency of the trickling filter is found empirically. Trickling filters की efficiency निकाली जाती है empirically. So efficiency of standard rate trickling filter is empirically given by 100 upon 1 plus 0.0044 square root of u. So efficiency of standard rate trickling filter is empirically given by 100 upon 1 plus 0.0044 square root of u, where u stands for organic loading rate. यहाँ पे u का मतलब है organic loading rate, और organic loading rate हमने last class में डिस्कस किया था. Organic loading rate we discussed in the last class. आपको डेटा दिया था मैंने organic loading rate का, उसमें अगर चेक करोगे आप organic loading rate की यूनिट थी kg per meter cube per day. ये एक empirical relation है. We take proper care of units in empirical relation. So in this empirical relation units should be kg per hectare meter per day. तो आपको ध्यान रखना है इस empirical relation में organic loading rate की यूनिट होनी चाहिए kg per hectare meter per day. तो अगर यूनिट्स में गड़बड़ हुई पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा आपका. So take proper care of that. पूरा ध्यान रखिएगा इस चीज का. So this is how to calculate the efficiency of standard rate trickling filter. कोई लॉजिक नहीं है, empirical relationship है. As per our code, this is the efficiency of standard rate trickling filter. कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से किसी के लिए? Any point to be referred from this for anyone? रिपीट करना है इसका कुछ? क्लियर है? चलिए क्लियर है. So we are done with this. Next we'll go for second case. तो अगला केस है हमारा हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का. So next is the case of high rate trickling filter. मीटर स्क्वायर में कहां से आ गई है? हमारे पंडित क्या बता रहे हो मीटर स्क्वायर में? What are you indicating in this meter square? वो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट थी मीटर स्क्वायर के अंदर. हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की बात नहीं चल रही है. We are talking about organic loading rate. So next is the case of high rate trickling filter. So next of the point of reference is high rate trickling filter. अब क्या है high rate trickling filter? We know in high rate trickling filter rate of removal is more than that of standard rate, reason being यहाँ पे हम रिसर्कुलेशन कराते हैं a part of sewage effluent either in single stage or in multiple stage. तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्योंकि रिसर्कुलेशन कराई जाती है एफ्लुएंट की हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज्यादा निकल के आती है. सो आई एम डायरेक्टली टेकिंग अ केस ऑफ टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. मैं डायरेक्टली केस ले रहा हूं टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का. सो टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर पीएसटी फॉलोड बाय ट्रिकलिंग फिल्टर फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन टैंक फॉलोड बाय ट्रिकलिंग फिल्टर फॉलोड बाय सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. तो ये हमारी टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है. सो दिस इज द टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर व्हिच इज बीइंग शोन टू यू डायरेक्टली हियर. अब टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, पहले लिख देते हैं कौन कौन सा यूनिट है. पीएसटी, देन ट्रिकलिंग फिल्टर, then IST, then again trickling filter, then SST, effluent discharge Q0, BODS, influent discharge Q0, BOD S0. Volume of first stage V1, volume of second stage V2. So recirculation. अब recirculation दिखानी है. So recirculation. This is the recirculation of the sludge. ये recirculation है sewage effluent की. So recirculation of sewage effluent. So recirculation of sewage effluent in single stage or in second stage. तो ये recirculation है. So this is QR. This is also QR. ये भी QR है. तो टोटल डिस्चार्ज इन द ट्रिकलिंग फिल्टर इज Q0 प्लस QR. पहली स्टेज में भी दूसरी स्टेज में भी है Q0 प्लस QR. कहने का मतलब है मैंने डायरेक्टली टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर दिखा दिया आपको. आई हैव डायरेक्टली शोन टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. अब मुझे इसकी एफिशिएंसी एनालाइज करनी है. आई हैव टू एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रिकलिंग फिल्टर. इसको एनालाइज करने से पहले मुझे कोई ये बताएगा रीसर्कुलेशन करने से एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ा था? रीसर्कुलेशन करने से एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ा था? बढ़ गई थी, कम हो गई थी? बाय रीसर्कुलेटिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर वाज इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड? Efficiency of trickling filter was increased or reduced? Efficiency trickling filter की बढ़ गई थी या कम हो गई थी? So efficiency of trickling filter was increased or reduced? कम से कम 20 आंसर आ गए हैं. एक ने सही जवाब नहीं दिया है. पहला सही जवाब आया है लोकेश ने. ये देखो सब बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पे आके. लोकेश ने बताया बस सही जवाब. अभी 2 दिन पहले की बात है, पूरी कहानी बताइए भाई. रिसर्कुलेशन करने से एफिशिएंसी पे कब से फर्क पड़ने लग गया? रिसर्कुलेशन करने का एम क्या था? और अभी रिपीट भी किया मैंने यहाँ पे कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा है क्योंकि रिसर्कुलेशन करी हमने. रिसर्कुलेशन करके हमने रेट बढ़ाई थी, पर रिसर्कुलेशन करने से एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ा था ये हम एनालाइज नहीं कर पा रहे थे. वी वर नॉट एबल टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड रेट विद हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. ये कंक्लूजन निकाल के दिया आपको और रीजन भी बताया था. रीजन ये था कि रिसर्कुलेशन करने से नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट तो बढ़ रहे थे, पर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो रहा था, इसलिए आप डायरेक्टली नहीं बता पा रहे थे.
Hence we were not able to compare. एक और बताया लोकेश, हाँ लोकेश ने भी गलत बताया ये, हाँ लोकेश, हाँ सेम, सेम का मतलब चेंज नहीं आएगा, मतलब क्या चेंज आएगा, इट कैन नॉट बी एनालाइज। तो रीसर्कुलेशन करने से एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं बताया जा सकता, तो सेम नहीं रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, इट कैन नॉट बी एनालाइज, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, सेम भी रह सकती है। तो कहने का मतलब है हम कंसेप्चुअली नहीं बता सकते बाय रीसर्कुलेशन व्हाट चेंज इन द एफिशिएंसी विल बी ऑब्जर्व्ड। तो एक ही ऑप्शन बचता है, उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके निकालो या ऑब्जर्वेशन से निकालो, आइदर रेफर दैट मैथमेटिकली और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास। सो मैंने दो स्टेज कंसीडर किए हाई रेट ट्रैक्टिंग फिल्टर में। पहला स्टेज उठाया, पहले स्टेज की एफिशिएंसी है 100/1 प्लस 0.0044 स्क्वायर रूट ऑफ w1/v1 into f1। अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे, देखने में वही एक्सप्रेशन है जो पीछे लिखा हुआ है। अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे, देखने में वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसे पीछे लिखा हुआ है, बस थोड़ी बहुत चीजों का फर्क है। कैसे? w1 है वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू स्टेज 1। w1 का मतलब है वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू स्टेज 1। तो कोई मुझे ये बताएगा पहली स्टेज में कितना ऑर्गेनिक मैटर एंटर कर रहा है? सो वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू स्टेज 1, पहली स्टेज में कितना ऑर्गेनिक मैटर एंटर कर रहा है? पहली स्टेज में ऑर्गेनिक मैटर एंटर कर रहा है Q नॉट इंटू S नॉट। दिस इज द ऑर्गेनिक मैटर विच इज गोइंग इन स्टेज 1। यूनिट क्या होगा इसका? kg पर डे। सो यूनिट विल बी इक्वल टू kg पर डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V1? V1 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V1? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इन स्टेज 1। इसकी यूनिट होगी हेक्टर मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इन स्टेज 1 इज V1, इसकी यूनिट होगी हेक्टर मीटर। तो कोई ये बताएगा W1/V1 क्या लिखा हुआ है? विल समबडी टेल व्हाट इज W1/V1? W1/V1 इज ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। U लिखा था मैंने इसको पीछे, तो अभी पीछे वाले एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है? U। यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख दिया W1/V1। बस एक डिफरेंस ही तो आया है F1 का। अभी F1 क्या होता है? F1 इज रीसर्कुलेशन फैक्टर। F1 इज रीसर्कुलेशन फैक्टर, और ये रीसर्कुलेशन फैक्टर इंक्लूड करता है रीसर्कुलेशन के इफेक्ट को एफिशिएंसी में। इसका मतलब रीसर्कुलेशन करने से हमारी एफिशिएंसी पे क्या चेंज आएगा वो हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर। दिस रीसर्कुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 1 प्लस 0.1 r का होल स्क्वायर, वेयर r स्टैंड्स फॉर रीसर्कुलेशन रेशियो। और रीसर्कुलेशन रेशियो की रेंज मैंने आपको कल बता दी थी, रीसर्कुलेशन रेशियो की रेंज मैंने आपको कल डिस्कस कर रखी है। इसका मतलब रीसर्कुलेशन करने से एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है वो हमें मैथमेटिकली सॉल्व करके ही निकालना पड़ता है। वी हैव टू सॉल्व इट मैथमेटिकली एंड देन वी हैव टू फाइंड, कंसेप्चुअली नहीं बताया जा सकता। तो ये एफिशिएंसी सिर्फ किसकी है? ये जो एफिशिएंसी लिखी हुई है सिर्फ किसकी है? ये एफिशिएंसी है सिर्फ स्टेज 1 की। अभी दूसरी स्टेज भी आ गई, दूसरी स्टेज भी आ गई, दूसरी स्टेज पे चले। वी एंटर्ड इनटू स्टेज 2। सो सेकंड स्टेज, so efficiency of stage 2 is given by 100/1 plus 0.0044 upon 1 minus efficiency of stage 1 into square root of W2/V2 into F2. So efficiency of stage 2 is equal to 100/1 plus 0.0044 divided by 1 minus efficiency of stage 1 into square root of W2/V2 into F2. Again notations are same, सबका स्टैंडर्ड मतलब है। eta 1 का मतलब क्या है? What is the meaning of eta 1? It's the efficiency of stage 1. W2 का मतलब क्या है? What is the meaning of W2? W2 का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू स्टेज 2। W2 का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज एंटरिंग इनटू स्टेज 2। तो मुझे ये बताओ, इफ आई नो द एफिशिएंसी ऑफ स्टेज 1, इफ आई नो द ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू स्टेज 1, हाउ मच ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विल डिकम्पोज इन स्टेज 1? अगर मुझे ऑर्गेनिक मैटर जो एंटर कर रहा है वो पता है, मुझे एफिशिएंसी पता है स्टेज 1 की, तो पहली स्टेज में कितना डिकम्पोज करेगा? तो पहली स्टेज में ऑर्गेनिक मैटर कितना डिकम्पोज करेगा? W1 into eta 1, ये डिकम्पोज कर जाएगा। ये देखो शंकराचार्य रटी हुई चीज बता रहा है। मैंने ये नहीं पूछा जो मैंने पहले बताया हुआ है, वो देखो 1 minus eta 1 into W। सुनो तो सही सवाल क्या पूछा है मैंने ये पूछा है पहली स्टेज में कितना डिकम्पोज हुआ है, ये नहीं पूछा है कि डिकम्पोजिशन के बाद कितना बच गया है। तो पहली स्टेज में जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ है वो है W1 into eta 1। एंटर कितना कर रहा था पहली स्टेज में? एंटर कितना कर रहा था? W1 एंटर कर रहा था। अगर W1 एंटर कर रहा था और W1 into eta 1 डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना? W1 एंटर कर रहा था और W1 into eta 1 डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना? W1 minus W1 into eta 1। इसी को हमने W2 बोल दिया। तो W2 किसके बराबर हुआ? तो W2 is equal to what? 1 minus eta 1 into W1। तो हमने W2 की वैल्यू निकाल ली। W2 is weight of the organic matter going in stage 1। What is the meaning of V2? V2 का मतलब क्या है? V2 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर इन स्टेज 2। इसका यूनिट भी क्या होना चाहिए? हेक्टर मीटर होना चाहिए। इट्स यूनिट शुड आल्सो बी इक्वल टू हेक्टर मीटर। F2 is recirculation factor for stage 2। F2 है recirculation factor stage 2 के लिए। तो 1 plus r upon 1 plus 0.1 r का होल स्क्वायर, सेम एक्सप्रेशन है। r का मतलब क्या है? recirculation ratio। r means recirculation ratio। रिलेशनशिप एम्पिरिकल है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। देयर इज नो लॉजिक इन्वॉल्वड हियर। अगर मुझे पहले स्टेज की एफिशिएंसी पता है, दूसरे स्टेज की एफिशिएंसी पता है, अगर मुझे पहले स्टेज की एफिशिएंसी पता है, दूसरे स्टेज की एफिशिएंसी पता है, व्हाट अबाउट ओवरऑल एफिशिएंसी? इफ आई नो द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द स्टेजेस, व्हाट अबाउट ओवरऑल एफिशिएंसी? ऐड कर देंगे दोनों को सौरभ, ये देखो दूसरा है, ऐड कर दो दोनों को। तो पहले स्टेज की 60%, दूसरे स्टेज की 70%, टोटल एफिशिएंसी 130%।
तो टोटल एफिशिएंसी विल बी 130%. तो 100 किलो ऑर्गेनिक मैटर गया, 130 किलो हट गया. व्हाट अबाउट ओवरऑल एफिशिएंसी? ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा 1 प्लस 1 माइनस ईटा 1 इनटू ईटा 2. इसको डिराइव भी करके दिखा रखा है मैंने आपको. आई हैव डिराइव्ड दिस आल्सो. इसको डिराइव भी कर रखा है. कहां डिराइव कर रखा है इसको हमने? वेयर वी हैव डिराइव्ड दिस? इन केस ऑफ डबल फिल्ट्रेशन. और वहां एक छोटी सी जानकारी दी थी आपको कि एक ही काम अगर हम 2 बार करते हैं सीरीज में, एफिशिएंसी बढ़ जाती है. इफ अ सिंगल वर्क बीइंग कैरिड आउट ट्वाइस इन सीरीज, इट विल गिव यू हायर एफिशिएंसी. ये आपको ज्यादा एफिशिएंसी निकाल के दे देगा. इट मींस वी नो हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रिपिंग फिल्टर आल्सो. अब हमें ये भी पता है कि ट्रिपिंग फिल्टर की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाए. कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? सर्कुलेशन डिस्चार्ज दोनों में सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो. रिसर्कुलेशन डिस्चार्ज इन बोथ द स्टेज कैन बी सेम आल्सो, कैन बी डिफरेंट आल्सो. कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. वो सेम भी रखा जा सकता है, डिफरेंट भी रखा जा सकता है. देयर इज नो इश्यू. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसको कुछ? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पूरी स्टोरी में से? इफ यू के यूनिट केजी पर मीटर क्यूब में रखेंगे तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा. अगर मीटर क्यूब में रखोगे तो एक्सप्रेशन में 0.44 आ जाएगा. क्लियर? सो वी आर डन विद द इंटायर एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रिकलिंग फिल्टर. जितना भी टेक्निकल एस्पेक्ट है ट्रिकलिंग फिल्टर का वो पूरा कैलकुलेट कर लिया हमने. दैट वी डिस्कस इन फुल डिटेल. V1 कैन बी इक्वल टू V2. V1 V2 के बराबर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है. सो V1 कैन बी इक्वल टू V2 आल्सो. एग्जांपल करा दो. लो एग्जांपल कर लो. सो एग्जांपल करा दो. लो एग्जांपल करो इसका फिर. सो क्वेश्चन नंबर 1. अब एग्जांपल कराना है इसका. सो एग्जांपल इज टू बी डिस्कस्ड. एग्जांपल कराना है. चलिए एग्जांपल करो फिर इसका. वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल. चलिए एग्जांपल निकालो. कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ recirculated discharge to be maintained ratio of recirculated discharge to be maintained in both stages of two-stage high rate trickling filter. Two-stage high rate trickling filter. Treating following wastewater. wastewater की प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है. ट्रीटिंग फॉलोइंग वेस्ट वाटर. अब क्या प्रॉपर्टी दी हुई है? प्रॉपर्टी दी हुई है आपको पॉपुलेशन है 1 लाख. पॉपुलेशन 1 लाख. नेक्स्ट वाटर डिमांड 200 liters per capita per day. 200 liters per capita per day. Then raw sewage BOD 300 milligram per liter. Next, effluent is to be disposed into the river. BOD removal efficiency of PST is 35%. BOD removal efficiency of PST is 35%. Next point of reference है organic loading rate. So organic loading rate high rate trickling filter है. Now okay, आपके सिस्टम में कोई इशू होगा. ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की रेंज बताई थी कल आपको. इन द लास्ट क्लास में डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ ऑर्गेनिक लोडिंग रेट. हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की रेंज क्या होती है? और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर व्हाट द रेंज ऑफ ऑर्गेनिक लोडिंग रेट? और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर व्हाट द रेंज ऑफ हाइड्रोलिक लोडिंग रेट?
What about the range of hydraulic loading rate? So let us suppose 1.5 kg per meter cube per day. kg per meter cube per day. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वॉल्यूम एंड एफिशिएंसी of trickling filter is same. Volume and efficiency of trickling filter is same in both these stages. Volume and efficiency of trickling filter is same in both stages. चलिए कैलकुलेट कीजिए. कुशागर टेलीग्राम पे ग्रुप है प्लस वाले बच्चों का, उसको ज्वाइन कर लेना. जब आप प्लस की क्लास लगाते हो, प्लस की क्लास में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप का, तो उसको ज्वाइन कर लेना. ज्वाइन दैट ग्रुप. तो स्टॉकिंग क्यों बढ़ेगी? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए तो स्लॉगिंग क्यों बढ़ेगी? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए तो स्लॉगिंग कहां से बढ़ जाएगी? अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए तो स्लॉगिंग क्यों बढ़ेगी? इफ द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, हाउ कम द स्लॉगिंग विल इंक्रीज? अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो स्लॉगिंग रेट कम हो जाएगी. रेट ऑफ स्लॉगिंग विल डिक्रीज. हाउ कम इट विल इंक्रीज? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो स्लॉगिंग क्यों बनेगी? बनेगी का मतलब क्या होता है? स्लॉगिंग बनती थोड़ी ना. ये स्लॉगिंग तो प्रोसेस का नाम है, स्लॉगिंग बनती थोड़ी है. स्लॉगिंग इज द प्रोसेस नेम गिवन टू दी is a name given to the process in which biomass is removed off. तो स्लॉगिंग बनती है उतरती थोड़ी ना. चलिए रेफर कीजिए, क्या प्रॉब्लम थी. तो आपको रेशियो निकालना है रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज का. 2 स्टेज हाई ट्रिकलिंग फिल्टर है. सो 2 स्टेज हाई ट्रिकलिंग फिल्टर है. दिस इज 2 स्टेज हाई ट्रिकलिंग फिल्टर. ये 2 स्टेज हाई ट्रिकलिंग फिल्टर है. तो 2 स्टेज हाई ट्रिकलिंग फिल्टर. सो दिस इज दी 2 स्टेज हाई ट्रिकलिंग फिल्टर. अब क्या क्या जानकारी दी हुई है उसको चेक करते हैं. डिस्चार्ज दिया हुआ है आपको. डिस्चार्ज दिया हुआ है. फिर इन्फ्लुएंट बीओडी दे रखी है आपको. पीएसटी की एफिशिएंसी दी हुई है. पीएसटी की एफिशिएंसी दी हुई है फॉर रिमूवल ऑफ बीओडी. क्यू नॉट जाएगा एस नॉट. ये ट्रिकलिंग फिल्टर है. ट्रिकलिंग फिल्टर है. इसका वॉल्यूम है वी. इसका वॉल्यूम है वी. तो इसका वॉल्यूम है वी बाई 2. ये हमारा इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक है. फिर ट्रिकलिंग फिल्टर है. इसका वॉल्यूम भी है वी बाई 2 क्योंकि दोनों के सेम वॉल्यूम है. देन हमारे पास है एसएसटी. देन हमारे पास एसएसटी. ये पहली स्टेज है. ये दूसरी स्टेज है. दिस इज फर्स्ट स्टेज. दिस इज सेकंड स्टेज. दिस इज क्यू नॉट. एफ्लुएंट बीओडी एस. बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं आपको इसके अंदर. n नंबर ऑफ कंडीशंस आर गिवन टू यू. सो n नंबर ऑफ कंडीशंस आर गिवन टू यू, जिसको अप्लाई करके आपको यहाँ पे रिजल्ट निकालना है. जैसे एफ्लुएंट को डिस्पोज कर रहे हो रिवर में, तो एफ्लुएंट बीओडी कितनी होगी? एफ्लुएंट को डिस्पोज कर रहे हैं रिवर में, तो एफ्लुएंट बीओडी कितनी होगी? एफ्लुएंट को डिस्पोज कर रहे हैं रिवर के अंदर, एफ्लुएंट बीओडी कितनी होगी? व्हाट इज द परमिसिबल बीओडी टू बी डिस्पोज इन द रिवर? तो एस की वैल्यू दे रखी है 20 मिलीग्राम पर लीटर. तो ये आपको डायरेक्टली बता दिया. एस इज गिवन टू बी 20 मिलीग्राम पर लीटर. एस नॉट निकालना पड़ेगा. अब एस नॉट निकालना है, उसके लिए क्या दिया हुआ है आपको? एफिशिएंसी दी हुई है बीओडी की. एफिशिएंसी बीओडी की दे रखी है फॉर पीएसटी. अब कैसे निकालें इसको? एफिशिएंसी क्या होती है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज एफिशिएंसी? टोटल अमाउंट ऑफ पैरामीटर एंटरिंग इनटू द सिस्टम एंड टोटल अमाउंट ऑफ पैरामीटर लीविंग द सिस्टम. टोटल कितनी बीओडी जा रही है? टोटल बीओडी जा रही है पीएससी में क्यू नॉट इनटू एसआई. और बाहर कितनी निकली? क्यू नॉट इनटू एस नॉट. कितने में से? क्यू नॉट इनटू एसआई में से. दिस विल गिव यू एस नॉट. ये आपको एस नॉट निकाल के दे देगा. तो एफिशिएंसी की वैल्यू गिवन है आपको. एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 35%. इन्फ्लुएंट बीओडी कितनी दे रखी है? इन्फ्लुएंट बीओडी है 300 मिलीग्राम पर लीटर. तो 300 मिलीग्राम पर लीटर. एस नॉट हमें चाहिए. डिवाइड बाय 300 मिलीग्राम पर लीटर इनटू 100. सिंपलीफाई किया. जो बीओडी एंटर कर रही है ट्रिकलिंग फिल्टर में वो निकल के आ गई. सो बीओडी एंटरिंग इनटू ट्रिकलिंग फिल्टर कैन बी फाउंड फ्रॉम हियर. कितनी आ रही है वैल्यू? जो बीओडी है ट्रिकलिंग फिल्टर की, वो वैल्यू डायरेक्टली निकल के आ गई है. कितनी है वैल्यू कमिंग आउट? 195.
सो 195 मिलीग्राम पर लीटर, ये एस नॉट आ गया। अगर हमें इन्फ्लुएंट बीओडी पता है, हमें एफ्लुएंट बीओडी पता है, इफ आई नो इन्फ्लुएंट बीओडी, इफ आई नो एफ्लुएंट बीओडी, व्हाट कैन बी फाउंड? ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। सो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर निकाल सकते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, टोटल बीओडी कितनी एंटर कर रही है, क्यू नॉट एस नॉट, टोटल लीव कितनी कर रही है, क्यू नॉट एस डिवाइड बाय क्यू नॉट एस नॉट इनटू 100, वैल्यू पुट करके निकाल लो। सो 195 minus 20 divided by 195 into 100, this is the overall efficiency of trickling filter। ये ओवरऑल एफिशिएंसी ट्रिकलिंग फिल्टर की कितनी आ रही है? व्हाट इज ओवरऑल एफिशिएंसी कमिंग आउट? 89.74, 90% लिख दिया मैंने यहाँ पे। सो आई एम कीपिंग द वैल्यू टू बी 90%, तो राउंड ऑफ कर दिया, तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकल के आ गई। देन उसने क्या बोला, दोनों स्टेज की एफिशिएंसी क्या है, सेम है, eta1 is equal to eta2। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इज इक्वल टू eta1 प्लस 1 माइनस eta1 इनटू eta2, वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो 90, सो 90 by 100, दिस इज इक्वल टू eta प्लस 1 माइनस eta इनटू eta, सॉल्व करो, दोनों स्टेज की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। So efficiency of first stage is equal to efficiency of second stage is equal to how much? 99% आ रही है एफिशिएंसी, गजब। तो 195 में से अगर 175 हटा दिया तो 99% एफिशिएंसी आ गई। कितनी आ रही है eta1 eta2? 68.3%, तो 68.3%, तो दोनों स्टेज की एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो एफिशिएंसी ऑफ बोथ दी स्टेजेस बीइंग कंप्यूटेड। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखी है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। सो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इज नोन टू यू, क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। इफ ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इज नोन टू अस, वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे? टोटल डिस्चार्ज कितना है वेस्ट वाटर का, टोटल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इज इक्वल टू 80% ऑफ वाटर डिमांड। सो 80% ऑफ वाटर डिमांड, वाटर डिमांड कितनी होगी, वाटर डिमांड होगी पॉपुलेशन इनटू 200, so this will give you the total discharge of wastewater। so 80% of water demand कितनी आ रही है निकल के, 1.6 into 10 raised power, so 1.6 into 10 raised power what, 5 तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, 1.6 into 10 raised power 7 लीटर पर डे। तो ये हमारा डिस्चार्ज निकल के आ गया, दिस इज द डिस्चार्ज। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर विल बी व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर विल बी इक्वल टू क्यू नॉट एस नॉट डिवाइड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो 1.6 into 10 raised power 7, एस नॉट की वैल्यू कितनी है, 195 मिलीग्राम, मिलीग्राम को बदल दिया किलोग्राम में। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वैल्यू दी हुई है आपको, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5 kg पर मीटर क्यूब पर डे। सो 1.5 kg पर मीटर क्यूब पर डे, यहां से वॉल्यूम निकल के आ जाएगा मीटर क्यूब में, सिंप्लीफाई करके निकाल लो। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, ये टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया ट्रिकलिंग फिल्टर का। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर कमिंग आउट। कितनी आ रही वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू कमिंग आउट, 2080 मीटर क्यूब। और क्या लिख सकते हैं, 0.208 हेक्टेयर मीटर, या तो 2080 मीटर क्यूब या 0.208 हेक्टेयर मीटर, क्योंकि आगे वैल्यू मेरे को हेक्टेयर मीटर में लेके जानी है। दोनों स्टेज का वॉल्यूम कितना है, V1 एंड V2 इज इक्वल टू V by 2, सो 0.208 डिवाइड बाय 2, 0.208 डिवाइड बाय 2, सो टोटल वॉल्यूम निकाल लिया था हमने। तो दोनों स्टेज का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। So it is coming out to be 0.104 hectare meter. So 0.104 hectare meter. So 0.104 hectare meter. तो ये वॉल्यूम निकल के आ गई, दिस इज द वॉल्यूम कमिंग आउट। नाउ व्हाट अबाउट एफिशिएंसी ऑफ स्टेज 1, 100/1 plus 0.0044 स्क्वायर रूट ऑफ W1 by V1 into F1, सारी वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। एफिशिएंसी ऑफ स्टेज 1 इज हाउ मच, एफिशिएंसी ऑफ स्टेज 1 68.3, दिस इज इक्वल टू 100/1 plus 0.0044 स्क्वायर रूट ऑफ W1, W1 ये लिखा हुआ W1, ये जो आपने न्यूमरेटर में लिखा हुआ है W1 है, ये जो आपने न्यूमरेटर में लिखा हुआ है W1 है। कितनी दी है वैल्यू W1 की, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है W1 है, कितना है W1, व्हाट वाज दिस W1, 3120, सो 3120 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल रखी है हमने पीछे, ये रही वॉल्यूम 0.104 इनटू F1, सिंप्लीफाई करो, F1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F1, सिंप्लीफाई करके बताइए वैल्यू निकालिए F1 की, कितना आ रहा है F1 निकल के, 2.69, सो F1 इज 2.69। अब F1 किसके बराबर है, 1 plus R1/1 plus 0.1 R1 का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू
1 प्लस 0.1 R1 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है 2.69। सिंप्लीफाई करो, R1 निकाल के बताओ कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 कमिंग आउट? कैलकुलेट करके बताइए R1 कितनी आ रही है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट R1। 11.89, एक का आ रहा है 5.28, अलग अलग वैल्यूज कहाँ आ रही है? 5.28, R1 इज 5.28, सबका ही आ रहा है 5.28। R1 किसके बराबर होगा? क्यू आर बाय क्यू नॉट। सो क्यू आर बाय क्यू नॉट 5.28, तो क्यू आर वन क्या आ गई? रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू 5.28 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। ये तो हमारी पहली कैलकुलेशन आई। दिस इज क्यू आर वन। यही कैलकुलेशन रिपीट करेंगे सेकंड स्टेज के लिए। एफिशिएंसी ऑफ स्टेज 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 डिवाइड बाय 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ स्टेज 1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ W2 V2 बाय F2। एफिशिएंसी कितनी है स्टेज 2 की? सेम 68.3। तो 68.3 दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 अपॉन 1 माइनस 0.683 स्क्वायर रूट ऑफ W2। स्क्वायर रूट ऑफ W2 हाउ मच? 1 माइनस ईटा 1 0.683 इंटू W1 निकाला हुआ है पीछे 3120। वॉल्यूम कितना है? सेम 0.104 डिवाइड बाय F2। सिंप्लीफाई करो, F2 निकल के आ जाएगी यहाँ से। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F2। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F2। का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8.5। सो 8.5, सो 1 प्लस R2 अपॉन 1 प्लस 0.1 R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8.5। सिंप्लीफाई करो, R2 निकल के आ जाएगी यहाँ से। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? आ रहा है किसी का रिजल्ट? गायब हो गए सब, इमेजिनरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स बनेंगे। Q2 का वैल्यू किस पे? Q2 कहां से आ गया इसके अंदर? Q2 किसको बोल रहे हो? W2 का वैल्यू, W2 का वैल्यू कैसे पुट किए? W2 का वैल्यू कैसे पुट किए, ये देखो कैसे पुट किए। ये रहा W2, 1 माइनस ईटा 1 इंटू W1। W2 का वैल्यू है 1 माइनस ईटा 1 इंटू W1। ईटा 1 की वैल्यू ईटा 2 के बराबर ही है। आ रहा है किसी का वैल्यू? डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। डायरेक्टली सॉल्व यूजिंग कैलकुलेटर।
6.15, तो 6.15 तो QR2, ठीक है, QR2 बाय Q0 इज इक्वल टू 6.15, यानी QR2 इज इक्वल टू 6.15 टाइम्स ऑफ Q0। पूछा गया था सवाल में QR1 बाय QR2 पूछा था आपसे, तो QR1 बाय QR2 इज इक्वल टू 5.28 डिवाइड बाय 6.15। दिस रेशियो वाज बीइंग आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। सिंपलीफाई करके निकालो हमेशा। सॉल्व नहीं हो रहा है, 0.858 आ रही है। कितना आ रहा है वैल्यू? 0.858 आ रही है। R2 गलत है तो सही वैल्यू बता दो जो भी है। R2 इज 0.86, R2 की वैल्यू है 0.86, तो R2 की वैल्यू है 0.86, so R2 is equal to 0.86, so 0.86, तो फिर क्या है? चलिए जो भी वैल्यू आ रही है, अब इसमें भी इतना टाइम लगाओगे तो हो गया फिर काम पूरा। अब वॉट एवर इज वैल्यू कमिंग आउट सॉल्व करो, वॉट एवर इज आंसर कमिंग आउट, ये x आया, x से डिवाइड कर लेना, ये चीज पूछी थी आपसे प्रॉब्लम में, दिस वाज बीइंग कंप्यूटेड, सॉल्व करके निकाल लेना। तो सिंपलीफाई और सॉल्व करके निकाल लेना जो भी आ रहा है। क्लियर है? सो हाउ टू डिजाइन ट्रिकलिंग फिल्टर, एफिशिएंसी कैसे निकलती है, रीसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है, रीसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है, सारी चीजें एक ही सवाल में आ गई है। ऑल दी कंसेप्ट्स आर अप्लाइड इन द सेम प्रॉब्लम ओनली। जितने भी कंसेप्ट बनाए थे ट्रिकलिंग फिल्टर में वो सारे अप्लाई हो गए एक ही प्रॉब्लम के अंदर। ऑल दी कंसेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड इन सिंगल प्रॉब्लम। R2 नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, निकल जाएगा R2। लास्ट स्टेप कौन सा लास्ट स्टेप बताऊं? विच स्टेप इज टू बी डिस्कस्ड आफ्टर F2 के बाद आप लिखो एक्सपेंड करके इसको, रीसर्कुलेशन फैक्टर की वैल्यू, रीसर्कुलेशन रेशियो निकाल लो। रीसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज टू द ओरिजिनल डिस्चार्ज। यहां से निकाल लो QR2 की वैल्यू। फिर सवाल ये पूछा था पहली स्टेज और दूसरी स्टेज के रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज का रेशियो कितना होता है, वो पूछ लिया इसने आपसे, तो वो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? जैसे पीछे वाले में क्या था वैसे यहां पर भी क्या हुआ, जैसे QR1 निकाला वैसे QR2 निकाला। एज यू हैव फाउंड QR2, QR1 यू विल फाइंड QR2, दोनों चीजें सेम निकलेंगी। चलिए, सो डन विद ट्रिकलिंग फिल्टर। जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ट्रिकलिंग फिल्टर के, ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स वी हैव कवर्ड। सो टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैलकुलेट कर लिए हमने ट्रिकलिंग फिल्टर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज रोटेटरी बायोलॉजिकल रिएक्टर। रोटेटरी बायोलॉजिकल रिएक्टर, it is also aerobic attached growth system, aerobic attached growth system। जिस क्वेश्चन में आस्क इन यूपीपीएससी, तो जो क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछेगा वही करवाने हैं बस। यूपीपीएससी वाला मुझसे पूछ के सवाल बनाएगा क्या? तो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये सवाल यूपीपीएससी में पूछेगा, और फिर डिसाइड भी कर लेंगे ईएससी मेन लेवल का ही है, तो खुद ही डिसाइड भी कर लेंगे ये ईएससी मेन लेवल का है। तो मेरे को छांट के बताना कौन सा यूपीपीएससी लेवल का सवाल है, एक बार छांट के बताना कौन सा सवाल यूपीपीएससी लेवल का होता है, कौन सा सवाल दूसरे लेवल का होता है। एक बार पूरी इंजीनियरिंग में से छांटना कि ये इंजीनियरिंग यूपीएससी लेवल की है, ये इंजीनियरिंग एमपीपीएससी लेवल की है, ये इंजीनियरिंग गेट लेवल की है। सारी इंजीनियरिंग को छांट के आना पहले, फिर उसके हिसाब से करेंगे हम कि कौन से लेवल का कितना होता है। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज रोटेटरी बायोलॉजिकल रिएक्टर। तो ये भी एक टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके नीचे हमने लिखा है एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम। एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम, इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है? इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर डीकंपोजिशन का मोड है एरोबिक। डीकंपोजिशन का मोड एरोबिक मींस व्हाट? यहाँ पे हम डीकंपोजिशन कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अटैच ग्रोथ सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? अटैच ग्रोथ सिस्टम है, इसका मतलब है हियर आल्सो मीडियम विल बी प्रोवाइडेड फॉर अटैचमेंट ऑफ बायोमास। जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने मीडियम दिया था बायोमास को अटैच करने के लिए, यहाँ पर भी हम मीडियम प्रोवाइड करेंगे बायोमास को अटैच करने के लिए।
इसलिए इसका नाम क्या रखा, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। तो डीकंपोजिशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बायोमास को अटैच करने का मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये कैसे ऑपरेट करता है, हाउ इट ऑपरेट्स, अब उसकी रेफरेंस निकाल लेते हैं। अब कैसे ऑपरेट करता है उसकी रेफरेंस निकालनी है। सो हाउ दिस ऑपरेट्स, दैट रेफरेंस इज टू बी ड्रॉन। तो उसके लिए मैंने आपको इसका व्यू बना के दिखाया है। फॉर दैट आई शोन दी सेक्शन ऑफ दिस रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। तो दोनों व्यू दिखा रखे हैं आपको, बोथ द व्यूज आर बीइंग शोन, दोनों व्यू दिखा रखे हैं। सो बोथ द व्यूज आर बीइंग शोन। पहला है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, दूसरा है क्रॉस सेक्शन, द सेकंड वन इज क्रॉस सेक्शन। यानी पहले वाले को हम साइड से देख रहे हैं, तो पहले वाले को साइड से देख रहे हैं, और दूसरे वाले को सामने से देख रहे हैं, तो दूसरे वाले को सामने से देख रहे हैं। अब ये कैसे ऑपरेट करता है उसकी रेफरेंस निकालनी है, हाउ इट ऑपरेट्स, दैट रेफरेंस इज टू बी ड्रॉन। तो कैसे ये आरबीसी काम करती है उसकी एनालिसिस करनी है हमें। सो हाउ दिस आरबीसी वर्क, दैट रेफरेंस इज टू बी ड्रॉन। सो कैसे आरबीसी काम करता है उसकी रेफरेंस निकालनी है, चेक करो क्या काम करता है, हाउ दिस आरबीसी वर्क। सो आरबीसी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस रोटेटिंग डिस्क। तो यहाँ पे ऑप्शन है, डायरेक्टली बन जाती है डिस्क। सो दिस आरबीसी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस रोटेटिंग डिस्क। अब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं बन रही है, सबका डायमीटर सेम होगा, डायमीटर ऑफ ऑल विल बी सेम, उसको इग्नोर करना, डायमीटर वेरी कर रहा है तो इफ डायमीटर इज वेरिंग इग्नोर इट, सबकी डायमीटर सेम है। सो डाई ऑफ ऑल द डिस्क इज सेम। तो हाउ दिस रोटेटरी बायोलॉजिकल रिएक्टर वर्क्स, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जी हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सो दिस इज रोटेटिंग डिस्क, ये सेंटर है, डिस्क रोटेट कर रही है, डिस्क इज रोटेटिंग। नेक्स्ट पानी, सो दिस इज द वाटर इन दिस, ये वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर। सो दिस इज द वेस्ट वाटर लेवल, तो ये पानी का लेवल है इसके अंदर। सो वेस्ट वाटर लेवल, so wastewater level is being shown. Depth of immersion is 0.4 times of D. So depth of immersion is 0.4 times of D. Die of the disc is D, डिस्क का डायमीटर D है। So die of the disc is D। चलिए अब कैसे काम करता है ये, how it operates। हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, इसमें पानी कहां से आ रहा है, we are talking about biological treatment in this from where the water is coming। ये बात हो रही है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, इसमें पानी कहां से आ रहा है, वाटर इज कमिंग फ्रॉम पीएससी। इसके बाद पानी कहां जाएगा, आफ्टर दिस वेयर द वाटर विल गो। सो वाटर इज कमिंग फ्रॉम पीएससी, इसके बाद पानी जाएगा एसएसटी में। फोकस किसके ऊपर है, सारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर है, द एंटायर फोकस इज ऑन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब कैसे काम करता है ये, दिस आरबीसी कंसिस्ट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड रोटेटिंग डिस्क। तो जब इसको सामने से देखोगे आपको एक ही डिस्क दिख रही है, ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। और जब इसको साइड से देखोगे नंबर ऑफ रोटेटिंग डिस्क है, देयर आर एन नंबर ऑफ रोटेटिंग डिस्क व्हिच आर प्रोवाइडेड सीरीज में लगी हुई है, पैरेलल में लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है डिस्क, पैरेलल में लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है डिस्क, पैरेलल में लगी हुई है। These discs are provided in series or in parallel. There are n number of discs which are being provided. How? In parallel to each other or in series. एक दूसरे के पीछे लगी हुई है सारी डिस्क। कैसे डिसाइड करते हो सीरीज है या पैरेलल है, हाउ यू डिसाइड। ट्रिकलिंग फिल्टर में बताया था आपको मैंने, नोजल जो होती है हमारी वो किस में लगी हुई होती है, जो नोजल होती है हमारी वो किस में लगी होती है, पैरेलल टू ईच अदर लगी होती है। जो नोजल होती है दे आर प्रोवाइडेड पैरेलल टू ईच अदर। ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज के बेस पे डिसाइड करते हैं। अगर सब में डिस्चार्ज सेम जा रहा है, सारे यूनिट्स में डिस्चार्ज सेम जा रहा है, इसका मतलब कैसे लगे हुए वो सीरीज में लगे हुए हैं। अगर डिस्चार्ज वेरी कर रहा है इसका मतलब वो पैरेलल लगे हुए हैं। तो हर डिस्क के पास जो पानी आ रहा है वो सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, हर डिस्क के पास जो पानी आ रहा है इस केस में सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, तो कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क, इस पे नंबर ऑफ डिस्क लगी हुई है एक दूसरे के पीछे। फिर से वही कहानी है, शुरू के 2 से लेकर 3 हफ्ते तक, शुरू के 2 से लेकर 3 हफ्ते तक बायोमास लेयर अटैच होती रहेगी इस डिस्क के ऊपर। फॉर फर्स्ट 2 to 3 वीक्स बायोमास लेयर विल बी अटैच्ड ओवर द रोटेटिंग डिस्क। तो 2 से 3 हफ्ते तक बायोमास लेयर अटैच होगी रोटेटिंग डिस्क के ऊपर, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर में हो रही थी। एक बार ये डिस्क अटैच हो जाती है, नाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स। एक बार ये डिस्क के ऊपर बायोमास लेयर अटैच हो जाती है, नाउ द प्रोसेस स्टार्ट। इस बायोमास लेयर में कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जब डिस्क घूम के पानी के अंदर आती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में आता है किसके, ऑर्गेनिक मैटर के। जब ये डिस्क घूम के बाहर जाती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बायोमास बनती है। और ये बायोमास दोबारा कहाँ अटैच हो जाती है, और ये बायोमास दोबारा कहाँ अटैच हो जाती है, डिस्क के ऊपर ही अटैच हो जाती है। तो जैसे जैसे प्रोसेस चल रही है, बायोमास लेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आ रहा है, जो वेस्ट वाटर में है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है एटमॉस्फेयर से और उसको डिकम्पोज करता है, दोबारा बायोमास बनती है, वो अटैच हो जाती है डिस्क के ऊपर। टाइम के साथ धीरे धीरे इस बायोमास लेयर की थिकनेस क्या करती जाएगी, टाइम के साथ धीरे धीरे इस बायोमास लेयर की थिकनेस क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मैटर की पेनिट्रेशन रिड्यूस होती जाएगी। सबसे कम ऑर्गेनिक मैटर किसके पास पहुंचेगा, सबसे कम ऑर्गेनिक मैटर किसके पास पहुंचेगा, सबसे कम ऑर्गेनिक मैटर किसके पास पहुंचेगा, जो इंटरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं। दे विल स्टार्ट व्हाट, दे विल स्टार्ट एंडोजेनस रेस्पिरेशन।
दे विल स्टार्ट एंडोजेनस रेस्पिरेशन। उसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, उसकी वजह से बॉन्ड हो जाएगा वीक। बॉन्ड वीक हुआ, एक टाइम पे आके क्या होगा, एक टाइम पे आके बायोमास लेयर रिमूव हो जाएगी। क्यों रिमूव हो जाएगी? बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस। इस बार टर्बुलेंस कौन क्रिएट कर रहा है, इस बार टर्बुलेंस कौन क्रिएट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ द डिस्क फ्रॉम द वेस्ट वाटर। जब डिस्क पानी में से घूमेगी टर्बुलेंस क्रिएट होगी। तो पिछले केस में पानी जब मीडियम पार्टिकल के चारों तरफ फ्लो कर रहा था टर्बुलेंस डेवलप हुई थी। इस बार जब डिस्क मूव करेगी वेस्ट वाटर में से तब टर्बुलेंस डेवलप होगी। तो एक पॉइंट पे आके इतनी टर्बुलेंस हो जाएगी कि ये बायोमास लेयर क्या कर जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टर्बुलेंस विल बी सफिशिएंट टू रिमूव द बायोमास लेयर, टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, स्लॉगिंग। ये स्लॉग्ड बायोमास को कहां लेके जाएंगे, एसएसटी में, वहां पे ये सेटल होगा, स्लज बनेगी और स्लज को हम डाइजेस्ट करा देते हैं। कैसे, उसका तरीका आपको अलग से बता रखा है। प्रोसेस कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब किसी डिस्क के ऊपर बायोमास लेयर बन रही है, किसी डिस्क के ऊपर से बायोमास लेयर रिमूव हो रही है। ओवर सर्टेन डिस्क बायोमास लेयर इज फॉर्मिंग, फ्रॉम सर्टेन डिस्क बायोमास लेयर इज गेटिंग रिमूव्ड। हमारा काम क्या था, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराना, करवा दिया। कैसे करवाया, बाय एस्टैब्लिशिंग द कांटेक्ट बिटवीन ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। और ये एस्टैब्लिश कांटेक्ट करवाने के लिए हमने मीडियम दिया, नाम क्या रख दिया, अटैच ग्रो सिस्टम। हमने 60% एरिया डिस्क का एक्सपोज कर रखा है टू द एटमॉस्फेयर। हमने 60% एरिया डिस्क का एक्सपोज कर रखा है टू द एटमॉस्फेयर। यानी डिकम्पोजिशन कैसे होगी, इट मींस डिकम्पोजिशन कैसे होगी, हाउ द डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस, एरोबिकली। इसलिए इसका नाम क्या रखा, एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम। क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली डिस्क रोटेट कर रही है, इट इज टर्म्ड एज रोटेटरी बायोलॉजिकल रिएक्टर। इसको टेक्निकली बोल देते हैं रोटेटरी बायोलॉजिकल रिएक्टर। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रिकलिंग फिल्टर यू कैन यूज दिस आल्सो। ट्रिकलिंग फिल्टर की जगह आप इसको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इस पर कुछ, एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। किसी ने डायग्राम भी शेयर किया इसका, वो भी देख सकते हो आप। somebody has shared the diagram also, you can see it also। तो दोनों अरेंजमेंट है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है ऑप्शन, और ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो दीस आर एन नंबर ऑफ डिस्क, एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। इसको जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको, आई हैव zoomed इट। ये सारी रोटेटिंग डिस्क है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। दीस आर रोटेटिंग डिस्क व्हिच आर प्रोवाइडेड वन आफ्टर द अनदर। क्लियर है? और अगर मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना है, ये मैग्नीफाइड फॉर्म में है। दीज आर, दिस इज द रोटेटरी बायोलॉजिकल रिएक्टर, ये रोटेटरी बायोलॉजिकल रिएक्टर। क्लियर पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो पूरी स्टोरी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम द एंटायर स्टोरी फॉर एनीवन। तो ट्रिकलिंग फिल्टर भी यूज कर सकते हो, आरबीसी भी यूज कर सकते हो, दोनों चीजें यूज की जा सकती है एज पर दी सूटेबिलिटी। दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। एज पर दी सूटेबिलिटी एनी ऑफ दी मेथड कैन बी यूज, कोई सा भी एक तरीका यूज किया जा सकता है। क्लियर है? सो टू प्रोसेसेस वी हैव कवर्ड, दो प्रोसेस हमने कवर कर लिए। सो टू ऑफ द प्रोसेसेस वी हैव कवर्ड। ये न्यू सब्जेक्ट है क्या? अगर आपने पहली बार देखा होगा तो न्यू सब्जेक्ट ही होगा। अगर आपने पहली बार देखा होगा तो न्यू सब्जेक्ट ही है आपका। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए, सो विल मीट टुमारो। कल आपकी जो क्लास है वो 9 बजे से शेड्यूल्ड है। टुमारो योर क्लास इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 9 o'clock। तो आपकी जो एनवायरमेंट की क्लास है वो 9 बजे से शेड्यूल्ड है। 8 बजे से होती है, वो 9 बजे से शेड्यूल्ड है। लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, आई शेयर द लिंक। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।